ہیں, نام کیا ہے عائشہ, نام کیا ہے فاطمہ, نام کیا ہے زینب, اور میاں انسٹاگرام پر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے فالوور بڑھانے کے لیے. یہ تو بہت غلط ہے. ہیلو گائز, ایک بار پھر سواگت ہے بھائیوں کا چینل ریئیکشن بابا میں. آج ہم ایک ایسی ویڈیو پہ ریئیکشن کریں گے, ان کا نام بتاتا ہوں, سید صحابت حسین صاحب. ان کی آج ویڈیو پہ ہم ریئیکشن کریں گے. اتنا زیادہ ریکمنڈیشن ہے ان کی ویڈیوز کے لیے, بہت طریقے کی ویڈیوز بنائی ہیں. ایک دو بھائی ہیں جنہوں نے ہمیں سیم یہ ویڈیو بھیجی ہے, تو ہمیں لگا کیوں نہ ہم اسی ویڈیو پہ ہی ریئیکشن کریں. اور اس ویڈیو کا نام ہے ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا, اور بیان سن کر ایک دم ایمان میں تازگی آ جائے گی. ایسا کیا بیان ہے دیکھ لیتے ہیں, اور ہوپفلی آپ کو ویڈیو پسند آئے. آپ لوگ ایسے ریئیکشن اور چاہتے ہیں تو آپ لوگ کمنٹ کر سکتے ہیں, اور یا پھر آپ ریئیکشن بابا ہمارا انسٹاگرام ہے, وہاں پلیز فالو کریں. ہم لوگ آپس میں بات چیت کریں گے, جو بھی ہماری آپ لوگوں سے بھی ہم سیکھیں گے کیسے کیا سب اسلام کے بارے میں. اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس ویڈیو کو, اور آپ چاہتے ہیں آپ کو ایسے ریئیکشن بھی ملتے رہیں تو پلیز چینل کو. گائز آج کا ریئیکشن ہم اسٹارٹ کر لیتے ہیں بنا کسی دیری کے. لیٹس پلے. مجھے بتائیں کتنا یاد کرتے ہیں, اب تو انسٹاگرام پر بدتمیزیاں شروع ہو گئی ہیں, بدتمیزیاں. مسلمان لڑکیاں ہیں, نام کیا ہے عائشہ, نام کیا ہے فاطمہ, نام کیا ہے زینب, نام کیا ہے رابعہ, نام کیا ہے ام کلثوم, نام کیا ہے سائرہ, نام کیا ہے آسیہ, اور میاں انسٹاگرام پر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے فالوور بڑھانے کے لیے. یہ تو بہت غلط ہے. اور میری بیٹی میری بہن تجھ سے گزارش ہے, ایک ہاتھ جوڑ کے, ایک تو اپنے آپ کو سمجھ, پردے میں رہ اور پردہ کر, اور اگر بے حیا بہت بڑی بالی اگر تو ہو گئی ہے تو تجھ سے ایک ہی گزارش ہے, یا تو اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل. تیرے اسلام کے ساتھ تیرا یہ کردار اچھا نہیں لگتا, صحیح بات ہے. اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل. وہ نام لیجنڈ تھے ایک دم. یہ تو نے کیا اسٹیٹس لگانے شروع کر دیے, کیا ہوگا اسٹیٹس سے مجھے پتا. اگر پوری دنیا تیرے اسٹیٹس کو دیکھے گی تو کیا مل جائے گا, مجھے بتا کیا مل جائے گا تیرے اسٹیٹس دیکھنے سے. تو نے اپنے اسٹیٹس پہ کیا لگایا ہے, برہنہ لڑکی لگائی ہے, برہنہ لڑکی لگائی ہے. کیوں کہ تو یہ بتانا چاہتا ہے دنیا کو کہ پہلے میں غیرت والا تھا اب بے غیرت ہو گیا. نہیں میرے بھائی, آپ کو شرم نہیں آتی نوجوان لڑکوں؟ ارے تمہیں تو دیکھتے ہیں لوگ, اب اسلام تم سے ہی تو نظر آئے گا. ارے تم ہی تو مسلمان ہو, تمہیں تو دیکھ کے اسلام کا اندازہ لگانا ہے. تمہارے فیس بک کے کیا لگا ہوا ہے, گندی تصویریں, اسٹیٹس لگا ہوا ہے, کوئی لائک کر دے. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات, اور حالات کے سب کو بتانے کے ہوتے ہیں. دنیا کو اسٹیٹس لگا کے دکھانے والوں اتنے بے غیرت لوگ ہیں, اپنی بیویوں کے اپنی بہنوں کے اسٹیٹس لگاتے ہیں. معاذ اللہ, مسلمان کتنا بے غیرت ہوتا چلا جا رہا ہے. اقبال کہتے ہیں مسلمان نہیں بھائی, سب کوئی ہو رہا ہے, سب دھرم ہی ہو رہا ہے اب تو. کل تک جو اپنی بہنوں بیٹیوں کو عزت سمجھتا تھا, ان کی عزت پہ جان دے دیتا تھا, آج وہ بے غیرتی کے سبب, اپنی لا علمی کے سبب اپنے موبائل پہ اسٹیٹس لگاتا ہے. اسٹیٹس سب کو دکھانے کا نہیں ہوتا, اور نہ سب اسٹیٹس دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حالات, اور حالات صرف رب کو دکھانے ہوتے ہیں. رب ہی حالات بدل سکتا ہے. اپنا اسٹیٹس مسلح پہ لگانا شروع کر, رات کو مسلح پہ اپنا اسٹیٹس لگانا شروع کر. یاد رکھ میری بات کو, اگر پوری دنیا لائک کرے گی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر میرے رب نے ایک لائک کر دیا تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی. بھائی صاحب مائک میں ایک دم جھنجھن کر دیے, زبردست یار. حضرت علامہ سید شہباز حسین صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, ذکر سرور کائنات لینے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اب بیدار ہو جاؤ خدا کے واسطے. مسلمانوں اب بیدار نہ ہوئے تو کب بیدار ہوگے؟ اگر سنو, یہ جو تم کہتے ہو لکھنؤ میں اکٹھے ہو جاؤ, رانچی میں اکٹھے ہو جاؤ, دلی میں, لکھنؤ اور دلی میں اکٹھا ہونے سے کام نہیں چلے گا, مسجدوں میں اکٹھے ہو. صحیح بات. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اصلی مسلم تو مسجد میں پایا جائے گا. سبحان اللہ. حضرت جملہ دوبارہ ہو, ریلی میں نہیں, مسجد میں. کیا مسجد میں کھڑے ہو, اپنی قوم کو پہچانو کہ تم کون ہو. بابا میں تھپڑ دے دیا ہوتا پیچھے, تم کون ہو. ایسے کچھ نہیں دنوں پہلے کیا کہتے تھے, یہ آ گیا تو کامیاب ہو جائیں گے, یہ آ گیا تو یہ میرا لیڈر ہے, یہ میرا نیتا ہے, یہ میرا لیڈر ہے, یہ میرا نیتا ہے. کیا تمہارا کوئی قائد نہیں ہے, کیا تمہارا کوئی رہنما نہیں تمہاری تاریخ میں جو تم انہیں اپنا لیڈر بتاتے ہو؟ تمہارا کوئی ایسا لیڈر ہے جس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو؟ بتا سکتے ہو کوئی ایسا لیڈر جس نے کوئی جو گھوٹالا نہیں کیا ہو؟ تم قسم کھا سکتے ہو اپنے لیڈر کے دامن کی؟ نہیں کھا سکتے. مگر تمہاری قوم کے پاس ایک ایسا لیڈر ہے جس نے 10 سال حکومت کی, مگر اس کے دامن کی قسم ہندوؤں نے بھی کھائی, مسلمانوں نے بھی کھائی, یہودیوں نے بھی کھائی, اس کے دامن کی پاکیزگی کی قسم سب نے کھائی.
भाई उसने 10 साल हुकूमत की और 10 साल के अंदर उसने 1060 शहर पता किए। कितने? 1060 शहर पता किए। 1060 शहर, यानी 3 दिन के अंदर एक शहर पता होता था उसके जमाने में। और मियां सुनो, उसने 10 साल में 4000 मसाजिद तामीर करवाई। कितनी? 4000, यानी एक दिन में 3 मस्जिदें बनकर तैयार होती थी उसकी दौरे हुकूमत में। उसने जब एक करवट ली तो कैसर को बर्बाद कर दिया, जब दूसरी करवट ली तो किसरा को बर्बाद कर दिया। जब उस कलंदर ने जब सामने को देखा तो नौशेरवा के खून को खाक और खून में मिला दिया। जब उसने निगाह उठा के दुनिया को देखा तो मियां उसे ही देख के 2003 के अंदर माइकल हार्ट ने अमेरिका के व्हाइट हाउस में खड़े होकर कहा था कि अगर दुनिया में 1 साल उम्र और जिंदा रह जाता तो पूरी दुनिया में सिवाय इस्लाम के और कोई मजहब नहीं होता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क़वानीन इस्लाम, कानून शरीयत, मजहब इस्लाम, पैग़ाम इस्लाम। वाह वाह माशाअल्लाह। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। वो उमर कौन है? जरा बोलो मेरी तरफ, इधर देखो, इधर देख के बोलो सुभान अल्लाह। वो उमर कौन है? मियां जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, इधर देखो मेरी तरफ तवज्जो करो, जब हिंदुस्तान आजाद हुआ ना तो फिर गांधी जी मिंबर सियासत पे चढ़ते हैं और सियासत के मिंबर पे चढ़ने के बाद हिंदुस्तान के गांधी जी ने खड़े होकर कहा था कि मैं किसी देवी देवता का हवाला नहीं दे सकता। हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ाना है और अगर हिंदुस्तान की तरक्की की तरफ ले जाना है हिंदुस्तान को, तो मैं तुमसे यही कहता हूं कि मदीने के उमर के तरीके पे चलो। भाई साहब जबरदस्त बात, सुभान अल्लाह, जबरदस्त कहा गांधी जी ने। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, माशाअल्लाह जी, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। काश हजरत उमर देखते मदीने से एक बार, इस तरफ को देखते, हमारी तरफ को देखते, सही। हमारे अंदर कुछ जोश पैदा हो जाए। केजरीवाल जब पहली मर्तबा मुख्यमंत्री बने तो खड़े होके दिल्ली में बोले, अगर मुझे अपनी दौराने तालिबी इल्मी में, यानी जब मैं स्टूडेंट था तब मैंने अपने स्कूल में अगर उमर को अपना पढ़ा होता तो केजरीवाल नहीं होता। आमीन। भाई साहब वाह वाह, क्या मिसाल है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मियां आदि दुनिया का बादशाह है और कुर्ते पे 14 पैमद लगे हुए हैं। कभी आपने देखा किसी प्रधान के कुर्ते पे पैमद? कभी आपने किसी एमपीएलए एमपी के कुर्ते पे पैमद देखा? नहीं देखा होगा, मगर ये 14 पैमद को पेज लगा, वो मुझे वो पैमद लगाते हैं और उलमा ने लिखा है एक पैमद, उसमें 14 पैमद में सारे कपड़े के नहीं थे, एक में कपड़ा जब नहीं मिला ना तो फिर काय का चमड़े का पैमद लगा हुआ था। मगर आदि दुनिया पे हुकूमत करता था। कोई एक पैमद क्या होता की है? बात नहीं कर रहा हूं, लोकसभा की। आदि दुनिया का हाकिम, जिसे आप और मैं भुला चुके हैं, जिसका जिक्र अब होता ही कहीं नहीं। मियां वो ऐसा हाकिम था, उलमा ने लिखा है वो खाली आदि दुनिया का बादशाह नहीं थे, का फिर का अल्लाह ने उन्हें आग पर भी हुकूमत अता फरमाई थी। जरा बोलो, जरा बोलो 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 बोलो। आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत। आग पर हुकूमत, मिट्टी पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, हवाओं पर हुकूमत। मियां उमर वो है कि जरा गौर करें, एक मर्तबा मिंबर रसूल पे तशरीफ फरमाए और तकरीर कर रहे हैं, तक आप जाए एक आदमी, एक साहब आते आकर के कहने लगे, हुजूर ज्वालामुखी फूट चुका है, पहाड़ में से आग शहर की तरफ को आ रही है, अगर नहीं रोका गया तो वो आग शहर में दाखिल हो जाएगी। उस जमाने में फायर ब्रिगेड का सिस्टम नहीं था। हजरत उमर ने अपनी चादर दी, ले मेरी चादर लेके जाओ और जाकर के आग को पीछे कर दो। तमीमदारी कहते हैं मैंने डर गया, मैंने क्या सोचा उमर से कहूं कि चादर को तो आग जला देगी, मगर फिर मैं गया और जाकर के मैंने जो हिम्मत करके उमर की चादर से आग को पीछे करने के लिए इशारा किया। कहते मैं करीब जाके जब मैंने इशारा किया ना तो जैसे डंडे को देख करके जानवर भागता है, वैसे ही उमर की चादर को देखकर आग पीछे भागती थी और दुनिया से ये कहती थी कि जब उमर की चादर दुनिया की आग से बचा सकती है तो आमना के लाल की चादर जहन्नम की आग से बचा सकती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नौरे तकबीर, नौरे रिसालत, चादरे मुस्तफा,
कितना जोश है इनके अंदर है ना। हजरत इतनी तेज तेज बोल लेना माइक पे बहुत बड़ी बात है। आधा पुशादा सकर बोलो सुभान अल्लाह। वाहरे उमर क्या मियाँ देखिए जमीन पे जलजला आ गया। जलजला समझते हैं ना, समझते ही होंगे। भूकंप आ गया मदीने में, जमीन हिलने लगी। जमीन जब हिली हजरत उमर फारूक आदम नीचे उतरे और आंखों में आंसू ला के जमीन पे खड़े होके बोले, ए जमीन क्या मैं तेरे ऊपर इंसाफ नहीं करता हूँ जो तू हिल रही है? ये बता क्यों उमर ने तेरे ऊपर इंसाफ नहीं किया है? इतना कहना था जमीन ठहर गई। 1400 बरस हो गए, पूरी दुनिया में जलजला आया मगर मदीने में आज तक जलजला नहीं आया। क्या बात है भाई। बाबा सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बस ठहरे, नारा रुके नारा जरा तकरीर करने दे। जोर से बोले सुभान अल्लाह। हाँ, दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। वो उमर जरा गौर तो करें आप। एक मर्तबा मिंबर पे बैठे, मौला अली कहते हैं मिंबर पे बैठे बैठे 1200 किलोमीटर इराक में जंग हो रही है। आप जो है मिंबर पे खड़े होकर कहते हैं या सारी अल जबल। कहते हैं मैं आगे बढ़ा। मैंने कहा हजरत अमीर मोमिनीन हजरत अली फरमाते हैं, मैंने कहा अमीर मोमिनीन ये बताएं वो सारिया 1200 किलोमीटर दूर है और आप क्या कह रहे हैं सारिया जबल को पहाड़ को ना छोड़ना? कहते हैं वो चलो। हजरत उमर बोले बस मुझे वजद आ गया, मैंने कह दिया छोड़ो। कहते हैं मैंने छोड़ा नहीं। मौला अली कहते हैं मैंने तो लिख लिया, चूंकि उमर कोई बात हिकमत से खाली नहीं करते थे। कहते हैं मैंने लिख लिया, कहते हैं मैंने लिख लिया वो दिन वो वक्त भी लिख लिया। जब सारिया 3 महीने के वापस आए तो मैंने पूछा क्या उमर की आवाज आई थी? कह लगे हाँ। अगर उमर की आवाज नहीं आती अमीर मोमिनीन की तो लश्कर पीछे से हमला कर देता। उमर की आवाज ने हमें खबरदार कर दिया। मौला अली बोले लोगों सुनो, अल्लाह ने उमर को हवाओं पर भी हुकूमत अता फरमाई। अरे भाई साहब कितनी हुकूमतें मिली हुई हैं सच। हवाओं पर भी बोले तो सुभान अल्लाह। दरिया नील में लड़की डाली जाती थी। जब नील जारी होता था नील हर साल सूख जाता था। उस साल भी सूख गया। लोगों ने कहा मुसलमानों से कहा ना बिल्कुल नहीं, हम लड़की को नहीं दफन कर सकते। मियाँ स्लोगन बनाना अलग है और लड़की को बचाना अलग है। समझ में आ रही नहीं आ रही आपके? ये स्लोगन तो लोगों ने बहुत बनाया मगर ये देखें हजरत उमर फारूक आज़म ने कहा कोई लड़की नहीं डाली जाएगी नदी में, कोई दरिया में नहीं डाली जाएगी। किसी ने कहा कि हुजूर वो खत लिखा कि यहाँ के लोग कहते हैं पुरानी रस्म है जब तक लड़की को नहीं डालेंगे दरिया नहीं चलेगा। तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कहा फिर दरिया कैसे जारी होगा? पर मैं कागज लेके आओ, कलम लेके आओ। ये है हुजूर के गुलाम की शान। आपने कागज कलम लिया, पर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से दरिया नील के लिए है। अगर अल्लाह के हुक्म से बहता है तो बेहतर है और अगर अल्लाह के हुक्म से नहीं बहता तो उमर को तुझसे कोई मतलब नहीं। जब वो दरिया में डाला गया खत में से ले जाके वो दरिया जारी हो गया। बताने का मतलब ये है इंसान तो इंसान को खत लिखता है मगर जो दरियाओं को खत लिख दे वो मेरा आका उमर है। भाई जबरदस्त यार, जबरदस्त। मतलब दरिया को खत लिख दिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मगर उमर कैसे है? उमर तो तलवार लेकर के इस्लाम के खून के प्यासे बन के जा रहे हैं। इस्लाम को खत्म कर दूंगा। किसी ने कहा उमर बड़े फायर हो, बड़े गुस्से में हो। तो ठहरो तो सही, थोड़ा रुको, कहाँ जा रहे हो? कहा 40वां मुसलमान नहीं होने दूंगा, इस्लाम को खत्म कर दूंगा। जवानी चाहे वो पहलवान उमर, हाथ में नंगी तलवार। उसने आदमी ने कहा ठहरो, मेरी बात सुनो, पहले अपने घर को देखो, तुम्हारे बहन बहनोई दोनों मुसलमान हो चुके हैं। उमर ने सुना, गुस्सा आया मगर यू टर्न ले लिया। मैंने कहा वाह रे उमर, क्या वक्त पे यू टर्न लिया है, क्या वक्त पे यू टर्न लिया है। यू टर्न लिया, घर पहुंचे बहनोई के, अन्ना कुरान की आवाज आ रही थी। आपने फरमाया दरवाजा खोलो। बहनोई आए, कहने लगे क्या? बहनोई आके बोलेगे कि कहने लगे क्या तुम इस्लाम ला चुके हो? कहा। अब बहनोई को वहीं से सारा गुस्सा उतार दिया। एक सन्नाटेदार हाथ मारा, एक हाथ के लगते ही बहनोई जमीन पे गिर गया। और फिर उमर जैसे पहलवान के घूसे मुख के पेदर पे मुंह पे जब लगे तो उमर के बहनोई बिल्कुल निढाल, बिल्कुल मौत के करीब। उमर फाइनल मुक्का मारने वाले थे। बहन आगे बढ़ के बोली तू क्या मेरा सगा भाई नहीं है? क्या मैं तेरी बहन नहीं हूं? क्या मुझे बेवा करेगा? तो फिर बहनोई को छोड़ा। अब बहन के मारा, एक तो औरत जात, उस पे उमर का हाथ मुंह पे मारा है ना जोर से। जब बहन के एक तरफ मारा तो एक गाल फट गया, दूसरी तरफ मारा दूसरा गाल फट गया। मारते मारते मुंह से खून की उल्टियां करने लगी मगर गिरती थी, फिर मारते थे, मारते मारते निढाल करके गिरा दिया। जब बहन नीचे गिर गई और जब उसकी आवाज आना बंद हो गई, बिल्कुल कमजोर होकर नीचे गिर गई, तो उमर ने जो है वो गुस्से से कहा बता इस्लाम छोड़ेगी? बहन निढाल थी मगर जब उमर ने कहा इस्लाम छोड़ेगी बता, तो बहन जो शेरनी की तरह खड़ी हुई और बोली ओ उमर, तू जिस खत्ताब का बेटा है मैं उस खत्ताब की बेटी हूँ। तूने जिस माँ का दूध पिया है मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। मैं अपनी जान तो दे सकती हूँ मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकती। तकबीर, नौरे रिसालत, दीने मुस्तफा, कवानीने मुस्तफा,
तवारीख इस्लाम हजरत उमर। देखो भाई साउंड बढ़ा। उमर बोले, कोई बात नहीं, मेरा साउंड काफी है, बैठो। तवज्जो है कि नहीं? उमर बोले, ये कैसा रंग चढ़ गया तेरे ऊपर? बोले, कुरान का रंग चढ़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कला कुरान मुझे भी तो दिखा। बहन बोली, नापाक के हाथ में कुरान नहीं दिया जाता। वाह 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 वाह। उमर बोले, चल मुझे पाक करा दे। मगर पहले बहनें भी मोमिना थी ना, कैसी थी वो, अब ऐसी नहीं मिलेंगी। सही आपको बात। पता है, हुजूर के गुलामों, सुनो, वो बहन जो है ना, हाथों पे पानी डाल रही थी, डाल पानी हाथ पे रही थी, मगर लौ रब से लगी हुई थी। कहती थी, मेरे रब, तुझे पता है मैं औरत जात हूं, कितना बुरा मारा है मुझे मेरे भाई ने, मगर मेरे रब, मुझे हर तरफ तकलीफ है, मेरा मुंह फट गया है, मुंह से खून की कुल्लियां कर रही है, आंखों से आंसू बह रहे, रो के कहती, मेरे रब, ये मेरा सगा भाई है, मैं नहीं चाहती कि ये जहन्नम में जाए, इसका हाथ धोना मेरा काम है, इसका दिल धोना तेरा, इसका दिल धो दे। हमारी बेटियां पहले ऐसी थी, इतनी खैर खाती अपने भाइयों की, अब औरतों को कुरान की कोई फिक्र नहीं है। एक दिन पहले हुजूर दुआ कर चुके थे, क्या? ऐ अल्लाह, अमर बिन हशाम को या उमर बिन खत्ताब, इन दोनों में से एक को ईमान की तौफीक अता फरमा, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली। दुआए मोहम्मद, मेरे नबी ने दुआ की है, और कैसे मेरे आका की दुआ, ये मिल गए जोड़। देखें आप, बहन ने कुरान पढ़ा, अब कहां पढ़ती हैं औरतें कुरान? आपको पता है, कुरान का असर नस्लों तक जाता है। सुभान अल्लाह। और हमारे पास सबसे बड़ा डेटा जो अल्लाह के बारे में है, वो कुरान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कुरान, जिस कौम ने कुरान छोड़ा वो बर्बाद हो गई। माओ का असर बच्चों पे पड़ता है। ये पानीपत है, पानीपत जानते हैं? पानीपत करनाल, वहां एक बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद रोने लगा। एक दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया, 5 दिन रोया, 6 दिन रोया, 7 दिन। जब ज्यादा रोया तो हकीम को दिखाया, 1, 2, 3, 4 कई हकीम बदले, 1 महीना हो गया, बच्चा खामोश नहीं हुआ। एक बुजुर्ग गुजर से जा रहे थे, फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद, उन्होंने कहा, ये बच्चा रो नहीं रहा, ये अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह की हम्द बयान कर रहा है। मुरीदों ने कहा, कैसे हुजूर? का आओ समझाता हूं। घर पे गए, कहने लगे, बच्चे के बाप हैं, बाप निकल के आए, कहने लगे, आपका बच्चा वली है। कहा, आप वली कह रहे हैं, 1 महीने से न सोया है, न सोने दिया, रोज रोता है, लाओ मेरी गोद में ला के दो। वो बच्चा गोद में ला के दिया। मियां, जब बच्चा गोद में ला के दिया ना, तो हजरत सैयदना फखरुद्दीन ने एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे कान में बच्चा खामोश। कहा, ये बताएं आपने क्या पढ़ दिया मेरे बच्चे के कान में? ये हकीमों से ठीक नहीं हुआ। कहने लगे, ये बताएं क्या इसकी माँ कुरान की हाफिजा है? कहा। तो सुनो, जब ये माँ के पेट में था ना, तो इसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, इतना कुरान पढ़ा, सोते जागते इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे की रूह की गिज़ा कुरान की तिलावत बन गई। बच्चे का जो जिस्म बड़ा है, अंदर बड़ा है, वो कुरान की तिलावत कर करके सुन के बड़ा है। इस बच्चे को आदत पड़ गई। जब बच्चा पैदा हुआ, और जब बच्चा पैदा होने के बाद माँ जचकी में चली गई, उसने कुरान पढ़ा नहीं। बच्चा भूखा था, तुम दवाइयां खिलाते थे, मैंने उसके एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन अली शाह कलंदर पानीपती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। भाई हजरत हक अदा हो गया, कसम खुदा की। बोले जरा, सुभान अल्लाह। अच्छा डॉक्टर देखे, अब मेरी मैंने जाती होगी डॉक्टर के यहाँ, कितनी औरतें प्रेग्नेंट होती हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, इमाम गजाली लिखा है, जब औरत प्रेग्नेंट मूवमेंट में होती है तो उसकी दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं, क्योंकि जब वो बच्चे को पेट में वजन रख के सजदे में जाती है ना, और कहती है, मेरे मालिक देख कितनी तकलीफ हो रही है पेट में रख के इस बच्चे को, मगर हो सकता है इसकी पैदाइश के वक्त में इंतकाल भी कर जाऊं, मर भी जाऊं। औरतें इंतकाल कर जाती नहीं कर जाती? वो अगर वो ये कहती ना, मेरे मालिक बस इतना करम करना, जब मेरा बच्चा पैदा होना तो बेटा मेरा बने, बंदा तेरा बने, गुलाम तेरे हबीब का बन जाए। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें आप। अच्छा डॉक्टर, अब डॉक्टर को दिखाने के लिए औरत गई, डॉक्टर ने कहा, आपने जो है ना, ये नहीं खाना, ये खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये खाएंगी तो ये नुकसान हो जाएगा, बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। ये मेडिकल साइंस से बता रहा हूं आपको। डॉक्टर ये कहते हैं कि आपने ये नहीं खाना है, गुस्सा नहीं करना है, वरना बच्चे के ऊपर भी असर पड़ेगा। ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, बच्चे के ऊपर असर पड़ेगा। आपने जो है वो, आपने सेब खाना है, इससे आयरन बढ़ेगा। आपने जो है वो संतरे खाने, विटामिन डी बढ़ेगा। मुझे बताओ, जब अल्लाह के बनाई हुई नेमतों का असर बच्चे की माँ के खाए तो माँ के पेट में बच्चे पे जा सकता है, तो क्या अल्लाह के कुरान को माँ पढ़े तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बेशक 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 जाएगा। सुभान अल्लाह,
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर उन्हें तो सीरियल से फुर्सत मिले तो कुरान पढ़े। ये जितने बच्चे कान में लीड लगा के गाने सुनते खड़े होकर पेशाब करते हैं, इन सब की माओ से कसम दे के पूछ लो कि जब ये पेट में थे तो बॉलीवुड की फिल्में देखी थी कि नहीं देखी थी? असर है, वही असर है। ये मजाक की बात नहीं है, मैं मजाक नहीं करना चाहता हूं, ये मेंबर है। अगर ये गैर जिम्मेदार हो गया तो फिर जिम्मेदारी कहां से आएगी? जी बेशक हजरत। मैं पूछना चाहता हूं अपनी बहन बेटियों से, क्या तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए घर में तुम बेपर्दा हो? समझो, घर में हो, घर में औरतें रहती हैं तो बिल्कुल बेकार कपड़े पहने रहती हैं और बाहर शादियों के लिए पार्टियों के लिए जाती हैं। अब तो पहले तो वो सीरियल देखती थी, अब वो टीवी में, अब तो मोबाइल में देख लेती है। वहीं से स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद वो पहुंच गई वहां पे दुकानदार के पास, जैसे इसने कपड़े पहने वैसे ही पहनने। जैसे ये जो पाकिस्तानी नाटक आया, माज़अल्लाह, पाकिस्तानी के नाम से मुझे बुरा लगता है, बहुत बुरा। आपको तो नहीं लगता बुरा? क्या, मुझे तो लगता है। पाकिस्तानी नाटक, पाकिस्तानी मुसलमानी सीरियल, ये मियां इन्हें देखने वाले, ये बिगाड़ने की बेहतरीन जो है चीज है। अगर बिगड़ना चाहता हो कोई, बैठे, जरा बैठे, मेहरबानी करें, थोड़ा बैठ जाएं, देखें मेरी बात जरा ध्यान से सुनने, थोड़ा संजीदा हो जाए, समझ आए मेरी बात पे? इधर देखें, इधर देखें। उसने यहां की आस्तीन कटी हुई है, उसने कहा उसकी भी कटी हुई है, मैं भी कटी हुई पहनूंगी। उसका गला बड़ा, मैं भी। वो टाइट और चुस्त कपड़े पहनती है जो पहनने हराम है, मैं भी पहनूंगी। मगर इसे किसी ने ये नहीं बताया कि ये सीरियल की औरत तो फाहिशा है, बदतमीज है। मेरे पास इतनी गंदी जबान नहीं जो उसकी तारीफ कर सकूं। अरे तुझे उससे क्या मतलब था? तुझे उसकी नकल करनी चाहिए थी। अरे वो तो मुआशरे की गंदगी है और तू मेरे नबी के दीन की इज्जत है। तुझे ये सोच, क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये जबरदस्त वीडियो भाई साहब, भाई आज से पहले ऐसा वीडियो नहीं देखा जिसमें उमर साहब की इतनी तारीफ। हाय 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 भाई साहब, हवाओं पे उनका हुक्म चलता था, जमीन पे, आसमानों पे, आग पे, है ना। और फिर दरिया तक को उन्होंने चैलेंज कर दिया, दरिया, समंदर। लोगों को देख के ही डर लग जाता है, मुझे तो वैसे ही पानी से बहुत डर लगता है। उनका हुक्म इसलिए चलता था क्योंकि उनके ऊपर पूरी रहमत अल्लाह की थी, ऊपर वाले की रहमत उनके ऊपर थी। बड़ा प्यारा वीडियो, और थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग जो ऐसे वीडियोज हमको सजेस्ट करते हो, हमें तो बहुत मजे आते हैं और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। आप लोगों को क्या सीखने को मिला, आप लोग अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। reactionbaba.official हमारा इंस्टाग्राम है, फॉलो करना ना भूलें, फॉलो करें, वहाँ पे भी प्यार दिखाएं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन भी मिलते रहे तो प्लीज चैनल को गाइज। आज के रिएक्शन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक ले थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज, सी यू गाइज, टेक केयर गाइस।